Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia reaches LNJP Hospital. Sisodia takes stock of the mock drills at LNJP Hospital is what we're learning. Now, of course, we saw in Delhi there was Mansukh Mandavia who took stock of the mock drills that had taken place in Safdarjung Hospital. Now we're learning that in LNJP Hospital, where the mock drills are being conducted again, Manish Sisodia is taking stock of the situation. Let's listen in to what he said. दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में कोरोना जैसी महामारी में लोग पैनिक ज़्यादा होते हैं, तो उस स्थिति से अभी मुझे लगता है पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश भर में जो जिस तरह के भी केसेस सामने आए हैं, जो प्राइमरी डेटा है, हालांकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में कहना है कि डॉक्टर्स का कि अभी टाइम लगेगा जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आने में, लेकिन प्राइमरीली जो डेटा सामने आ रहा है देश भर में वो ये है कि इस वेरिएंट से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये वेरिएंट भी उसी तरह का हो जिस तरह का पिछला वाला वेरिएंट था, जिसमें लोगों को कोविड तो हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। नोजल वैक्सीन को लेकर क्या? नेजल वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने कहा है कि हम उपलब्ध कराएंगे, जैसे ही मार्केट में उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार पास नहीं है दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है सर। All right, this of course comes as there is preparedness. There is in fact mock drills going on for preparedness of a possible COVID wave. Let me rope in Dr. Gilada, who's still with us on the broadcast. Dr. Gilada, now we saw Mansukh Mandavia taking stock of the situation there in Safdarjung. Now this is Manish Sisodia taking stock in LNJP Hospital. We'll take some updates on what is actually happening on ground. But sir, if you could tell us now, how do we then address the loopholes? You said there are in fact some focus areas that we could address. If you could just take us through what are the things that should be done? First and foremost, number one, I don't think there are any loopholes now. Number two, we had seen the cases of BF.7 in July and October. So we should do a kind of contrastation from there. How many cases were led from there to there? If that was really very infectious at that time, and it was also concern for India, despite having BA.2, we would have got lakhs of cases. It is not so. Similarly, last 2 weeks we are seeing BA.7 cases, 3 or 4, one in Odisha, one in Ahmedabad, and one in somewhere. So let us focus on that. And secondly, let's understand, genome sequencing is number one, very tedious procedure, very expensive procedure. Everybody's genome sequencing cannot be done. So, and results are not immediately. We need to have a batch of 100, 200, 300 to run a cell. So, it will take a week time. So, what is happening today will be known only after 1 week. But currently, what you see, the number of cases which are going up by 3% or 11% or 10%, they are because of creating awareness and people are getting tested. And at airport, you started testing, therefore those numbers are hidden. I don't think there is no link up. Absolutely, Dr. Gilada and Dr. Arora. Thank you for joining us and sharing your thoughts on this. Let me quickly rope in my colleague Naveen joining us on the broadcast. Naveen, we're learning that Manish Sisodia is now taking stock of the mock drills being held in LNJP. Take us to the latest. बिल्कुल देखिए, बता दें कि मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले LNJP अस्पताल पहुंचे और आपको इमरजेंसी हम दिखा रहे हैं कि यहीं पर मनीष सिसोदिया पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने तमाम जो मॉकड्रिल है उसका जायजा लिया। साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की जबकि कोई मरीज यहां पर आता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कितने देर में मरीज को अंदर वार्ड में एडमिशन मिल जाता है। LNJP की इमरजेंसी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और यहीं से जो कोरोना वार्ड है उसकी यहाँ से शुरुआत होती है। तो आपको बता दें कि यहीं से इसकी शुरुआत होती है और मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP अस्पताल डॉक्टर सुरेश कुमार, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। वो लाइव पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था LNJP अस्पताल में थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अभी के समय यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे मरीजों का लग रहा है। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुरेश कुमार जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है लोक नायक हॉस्पिटल, उनके डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ रिस्पॉन्स टाइम अभी के समय मरीजों को मिल रहा है। सर सुरेश सर क्या कुछ रिस्पॉन्स टाइम रहा? मनीष जी आए थे, परफेक्ट रिस्पॉन्स टाइम रहा। हम देखते हैं कि ट्रायल्स करने में कितना टाइम लगता है और पेशेंट्स जैसे ही हम रिसीव करते हैं एम्बुलेंस से और उसको इमरजेंसी में कैसे उसको हम हैंडल करते हैं, क्या क्या उसको
वाइटल पैरामीटर्स हम चेक करते हैं और उसके बाद उसको कहाँ पर शिफ्ट करना है ये सब हम देखते हैं, ठीक है ना। कितने बेड्स हैं सर अभी यहाँ पर? कितने बेड्स? सर बेड्स की संख्या कितनी है यहाँ पर सर? डॉक्टर साहब कितने बेड्स? तो सुरेश कुमार को आप सुन रहे थे जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है उसके मेडिकल डायरेक्टर, उनका साफ कहना है कि रिस्पॉन्स टाइम देखा गया कि जब कोई मरीज यहाँ पर आता है तो एम्बुलेंस से उतरने से लेकर उसके वार्ड में एडमिशन तक में उसे कितना समय लगता है। तो तैयारियां मुकम्मल है। एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। यहाँ पर जो बेड्स हैं वो इमरजेंसी के सिचुएशन में लगभग 2000 की संख्या तक उन्हें बढ़ाई जा सकती है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.